Welcome back to Beyond the Prescription, Pharma Talks by RCOPS, where we decode the lives of pharma professionals and discover that there is a lot behind than LinkedIn profile, than dashboards and deadlines. Now, today's guest might be fluent in Power BI, SQL, and stakeholder diplomacy. But don't worry, we won't make this an Excel tutorial. We are joined by Mr. Adarsh Singh, who is currently working as a senior analyst at Novartis, who is transforming pharmaceutical data into brand saving strategies. He has secured AIR 10 at Naipur, AIR 28 at GPED. He is a kind of a person who knows your brand's KPIs better than you know your own birthday. So grab your coffee or your calculator and let's get into the curious, analytical, and maybe little Excel colored world of Adarsh Singh. We welcome you, sir. Thank you, Riya. Thank you for inviting me. Thank you, sir. Welcome to the show, sir. Thank you. तो सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ के मतलब after so many years you are coming to the college, like how you are feeling? It's good. ये तो ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे फर्स्ट डे when I came to college and all the memories that we had in the college it came through. But yeah, it's nice. Yes. तो सबसे पहला थॉट आपका क्या था कॉलेज को देख के? मतलब कई बार हमें कोई ऐसा बहुत ही खास मोमेंट याद आ जाता है जब हम कॉलेज के बच्चों को देखते हैं, कुछ भी एक मोमेंट जो बहुत जल्दी क्लिक करता है माइंड पे। वो तो मस्ती का ही आता है कि कैसे एंजॉय किया था टाइम। पढ़ाई तो पहली बार में आता नहीं है, वो तो किसी के लिए भी नहीं आता है। पढ़ाई इज लाइक द सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी फॉर अस, राइट? When we come to college में क्या? तो सर आपको हमेशा से फार्मेसी ही करनी थी? मतलब आपके स्कूल कॉलेज में कुछ हुआ हो कि कोई ट्रेजिक पॉइंट आया हो जिसकी वजह से आपने फार्मेसी को चूज किया और फिर इतना अच्छा करियर बनाया? I had a tragic point. Like I was preparing for JEE. So that time I am from Bihar basically. I am from Bihar. So in 2013 there was a rule came from the government, 70 plus 30 rules. Like 70%, your rank will be decided by 70% JEE marks and the 30% your 12th marks. So as usual, I had like less marks in 12th, and then my rank got very far ahead. So और उस टाइम मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, मैंने कुछ और एग्जाम दिया ही नहीं था, तो फिर बाद में कॉलेज नहीं मिले और आई हैड नो ऑप्शन। लाइक और मैंने उससे पहले मैंने फार्मेसी का नाम भी नहीं सुना था। तो आई केम अक्रॉस अ फ्रेंड, ही वाज कमिंग टू भोपाल टू टेक एडमिशन इन फार्मेसी। तो ही जस्ट सजेस्टेड मी कि बढ़िया कोर्स है, कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। ये मतलब लेट्स ट्राई, क्योंकि घर वालों का ये था कि नो वी वांट स्पेंड वन मोर ईयर टू यू। तो फिर मैं चला, देन व्हेन आई केम हियर देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग, बिकॉज लाइक बायो मेरा सब्जेक्ट नहीं था। आई हैड लाइक पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बट व्हेन आई केम हियर आई स्टार्टेड लर्निंग, देन आई started enjoying it. बट शुरू में आपको ऐसा नहीं लगा कहाँ फंस गया हूँ? No, मतलब क्या है? it's not about like always like if you do the job, if you study, like you need to find something to do, like you need to find purpose, right? like हम बोलते हैं ना कि हमें अपने पर्पस को फॉलो करना चाहिए। कितने लोग हमारे में से पर्पस एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं? नो वन इज डूइंग। लाइक आउट ऑफ 100 में से 1 या 2 लोग कर रहे हैं। तो व्हाट बेस्ट वी कैन डू कि हम जो कर रहे हैं उसमें पर्पस फाइंड करो। सो इट्स नॉट लाइक कि हम रोज नया नया करियर चूज कर सकते हैं, राइट? सो इफ यू आर स्टडीइंग, जस्ट फाइंड योर पर्पस इन देयर, राइट? So, please tell us how your journey started from college in Bhopal to Novartis. Like you have joined. Yeah, so when I was in Bhopal, when I completed my B Pharm, so I joined for a few months for GSK. Like there was a gap of 2 or 3 months in joining. नाइपर मेरा हो गया था, मेरे को नाइपर ज्वाइन करना था। बिफोर दैट आई हैड लाइक मेरा BHU में भी हुआ था। सो आई हैड 2 ऑप्शन कि M-Pharm कर लो या MBA कर लो। सो उस टाइम मेरा GSK में भी हो गया था। आई हैड लाइक मल्टीपल ऑप्शन कि GSK में जॉब कर लो, M-Pharm BHU से कर लो, एंड आई हैड सेकंड रैंक इन BHU IIT। तो फिर और इसमें कर लो, बट लाइक I realized like कि MBA मतलब I was trying to see some business kind of thing, like yeah, because everyone was doing M-Pharm and everything. I tried for MBA and then through MBA I went to Novartis. So I mean it's different feeling, like I never thought about that. मतलब मैंने Novartis का नाम भी नहीं सुना था, but yeah ये जर्नी है। So just आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि लाइफ में बस होता जाता है, बस होते जाता फ्लो के साथ आगे अच्छे से करते जाओ अपना 100%। सर यू हैव गॉट एन फैंटास्टिक रैंक इन GPET एंड नाइपर। तो आपने पढ़ाई कब से शुरू करी थी? ऐसा होता है आप जैसे आपने बताया कि मैं मैथ साइंस का इंसान
स्टूडेंट था, फिर आप जैसे फार्मेसी में आए तो आपको जीपेट के बारे में फॉर श्योर नहीं पता होगा नहीं पता। स्टार्टिंग पे, तो आपने कब आपको पता चला, फिर आपने कब उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी? आई गेस थर्ड ईयर में मुझे पता चला, आई केम टू नो कि हाँ जीपैट है, ये नाइपर है। जीपैट ही मैंने पहले सुना था, नाइपर का मुझे डिड नॉट हैव एनी आइडिया। और ये कैसे पता चला, तो याग्निक सर, so he came to our college to give a lecture on some Seminar. chemistry के टॉपिक पे। so मतलब मैं थोड़ा, मेरे को लगता था कि मेरे को बहुत आता है, ठीक है। so in that seminar I asked few question and he explained me ये वो कैसा है। so मतलब I was impressed, ठीक है। तो then I met him, तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, कोचिंग भी होता है। उस टाइम तक मैंने जीपेट सुन तो लिया था, बट आई वाज नेवर अवेयर अबाउट की कोचिंग भी होती है, इसका कुछ भी है। so then I went to him अराउंड लास्ट ईयर में ही मैं गया था, अभी इसी टाइम, अब जून और जुलाई के टाइम पे। वी हैड एग्जाम इन जनवरी, आई स्टार्टेड कोचिंग इन जून और जुलाई, सो इट वाज अराउंड 6 or 7 months ऑफ प्रिपरेशन। और आपने इतनी अच्छी रैंक। It's not about only that 6 or 7 months. We had this I had 3 years as well, right? So अगर आप सेमेस्टर की पढ़ाई अच्छे से करते हो, not only just to pass the exam, just एक रात जो पहले हम स्टडी करते हैं, so it should not only be our target. So अगर हम उस 3 years को या 3.5 years को हमने अच्छे से पढ़ा है, तो it won't be that difficult. वो 6 महीने 7 महीने will be like कि वो आपकी जो भी स्टडीज है कि फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा मे भी अपने सेकंड ईयर में नहीं पढ़ा होगा, बट इट विल बी लाइक रिवीजन फॉर यू, राइट। एंड वो चीज जानना कि एग्जैक्टली कि क्या एग्जाम में आएगा, देन दैट विल हेल्प यू, राइट। तो आप क्या समझते हो सबसे कॉमन मिस्टेक जो एक स्टूडेंट करता है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम? यस, अभी के लिए इफ आई टेल यू आज के सिनेरियो में, सो सी, तो ऑनलाइन स्टडी जो हम हर चीज के लिए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, इट्स नॉट गुड। व्हाई आई एम टेलिंग यू, लाइक इफ आई गिव यू बुक, अगर मैं पढ़ने के लिए बुक दे दूंगा और आपके पास फोन नहीं है, जस्ट सपोज कि आप फोन हटा दो, बुक से पढ़ो, तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे तो क्या करोगे? सपोज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यहाँ से वहाँ। हाँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आप पढ़ रहे हो तो सीएनएस पे चले जाओगे, आप कुछ और पढ़ लोगे उसमें से कोई और चैप्टर, डिस्ट्रैक्ट हो, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग बट स्टिल यू आर स्टडीइंग, राइट। वो भी काम ही आएगा। बट फोन के साथ हमारे पास ऑप्शन ये है ना कि हम पढ़ रहे हैं एंड वी हैड थाउजेंड ऑफ नोटिफिकेशन, कभी व्हाट्सएप पे आ गया, कभी इंस्टा पे आ गया, कभी यूट्यूब पे ये आ गया, कभी न्यूज आ गया, तो वी हैव लॉट ऑफ जो ये नोटिफिकेशन और जो ये डिस्ट्रैक्शंस है ना, वी नीड टू रिड्यूस दैट। अगर पढ़ाई करना है तो यू नीड टू गिव प्रॉपर टाइम टू इट, वो, और ट्राई टू यूज बुक एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। बुक से भी पढ़ना बेस्ट है, इवन आज हो कल हो, आज से मेरे को लग रहा है कि 100 साल बाद भी होगा, ठीक है। वो जब तक वो ब्रेन इम्प्लांट वाला जो एलन मस्क बना रहा है वो ना आ जाए, देन दैट टाइम तक बुक ही बेस्ट होगा कि बुक पढ़ो। बुक इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज अब गूगल आप कर लो तो आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगा, मे बी ज्यादा चीजें मिल जाए, तो कभी कभी ज्यादा चीजें भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। एंड देन बुक में यू हैव एवरीथिंग, राइट। इवन गूगल भी कहीं से बुक से ही ले रहा है, राइट। सो आई थिंक द बेस्ट वे टू डू द स्टडी इज बुक। So what was your study plan? Like आप कितने घंटे पढ़ते थे? Usually बच्चे ये सोचते हैं कि भाई 10 से 12 घंटे पढ़ो तब टॉप 10 में आ पाओगे। No, it should not be, I mean, it should not be about hours. मेरे को नहीं लगता कि hours, अगर आपको अच्छा लग रहा है आज पढ़ना। और एक तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम ना टाइम टेबल बनाते हैं कि टुडे आई विल गिव 1 hour टू केमिस्ट्री, 2 hour टू फार्माकोग्नोसी, 3 hours टू फार्माकोलॉजी, 4 hours टू ये। ऐसे पढ़ाई नहीं होती। मेरे को लगता है कि अगर जिसको कंपटीशन निकालना है वो ऐसे पढ़ ही नहीं सकता है। अगर मान लो मेरे को केमिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को ये चैप्टर अच्छा लग रहा है, मैं पढ़े जा रहा हूँ, मेरा फ्लो बना हुआ है। अब जस्ट मेरी घड़ी अलार्म का वो बजा कि नहीं, नाउ इट्स टाइम फॉर फार्माकोग्नोसी, अब बंद करो, फार्माकोग्नोसी छोड़ दो। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। अगर अच्छा लग रहा है तो पढ़ो ना, केमिस्ट्री के 4 और चैप्टर खत्म कर दो। तो ये ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ो, आपको जो सही लग रहा है आप पढ़ते जाओ और टाइम मत गिनो। हो सकता है कि आज आपने 4 ही घंटे पढ़े और कल आपने 15 घंटे पढ़ दी, तो इट शुड नॉट बी टाइम कि हाँ मेरे को 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है। इट ऑलवेज शुड बी कि हमें क्या पढ़ना है, और ये भी नहीं कि हाँ वो पूरा टाइम टेबल एक बना दिया, 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आपको आपका टारगेट पता है, यू हैव 5 सब्जेक्ट, यू हैव 10 सब्जेक्ट, यू नीड टू कंप्लीट दैट, ठीक है। आप कैसे पढ़ रहे हो, आप कितना घंटे दे रहे हो, मे बी किसी के लिए 1 hour इज इनफ। जो आप 10 घंटे में पढ़ोगे, क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर्स, यस यस। तो सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था ड्यूरिंग फार्मेसी? आई थिंक फार्माकोलॉजी था, और केमिस्ट्री आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, तो केमिस्ट्री उस टाइम से ही मेरी अच्छी थी, तो केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी आई गेस, बट कोलॉजी वाज
इवन जब मैं IIT BHU में एडमिशन ले रहा था तो आई टुक कोलोजी ओनली, बट देन आई कैंसल्ड इट। सर आपने ऐसा MBA चूज करा है आफ्टर फार्मेसी, आपने कभी क्लिनिकल रोल्स की तरफ या रिसर्च की तरफ जाने का नहीं सोचा कि, या फिर MBA आपने स्टार्टिंग से सोच के रखा था कि मुझे MBA साइड जाना है, या फिर ऑल ऑफ सडन? नो, मैंने स्टार्टिंग से ही सोच रखा था। इवन लाइक आई वाज मोर इंक्लाइंड टू बिजनेस, कि बिजनेस वर्ल्ड कैसे चलता है फार्मा का, नॉट अबाउट ओनली अबाउट क्लिनिकल रिसर्च, बिकॉज लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग दैट ओनली। और और क्योंकि मैंने मेरे पास मोर देन वन ऑप्शन आई शुड हैव, तो इसलिए मैंने BHU में एडमिशन ले लिया था, बिकॉज इन BHU वी डू नॉट हैव MBA, राइट? हाँ। So first we had BHU exam, so I took admission in BHU. But I was hoping कि अगर नाइपर हो गया, so I will take MBA. So ऐसे ही हुआ, नाइपर हुआ, फिर मैंने वहाँ से MBA किया। Yes, तो थैंक यू सर। सर योर फर्स्ट इंटर्नशिप वाज एट सेल्स एंड मार्केटिंग, yes. तो आपने वहाँ से क्या सीखा और क्या रोल था आपका, किस तरीके से आपने वहाँ पे इंटर्नशिप की और क्या चीज़ें सीखी? यूजुअली हम ये सोचते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग इज अ फील्ड जॉब, और उसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं डिफरेंट? No, the job that I did for internship, it was not only field job. So it was a, जो मेरी कंपनी थी, it was more kind of एक बुक्स आती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक, ELN बोलते हैं। सो दिस कंपनी मेक्स ELN, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक बनाती है वो। तो उसका काम, जहाँ पर लैब्स हैं, जो बड़ी बड़ी लैब्स हैं, वहाँ पे दे लाइक वहाँ पे आप नोटबुक में तो आप हर चीज़ नोट कर नहीं सकते हो, सो दे प्रोवाइड दैट ELN कि आप हर कुछ जो कर रहे हो प्रोसेस ऑटोमेट करो, यूज दैट ELN। सो उसमें ये था कि एंड द प्राइस ऑफ दैट ELN इज वाज नॉट लाइक 1000-2000 नहीं था, इट वाज अराउंड 5 करोड़। सो आई नीड टू जनरेट द लीड, कि मेरे को सेल नहीं करना था, बट आई नीड टू जनरेट द लीड कि सो इन दैट लाइक आई यूज टू कॉल, लिंक्डइन से नंबर लिया, कहीं से भी लिया, आई यूज टू कॉल किसी को भी, किसी कंपनी का CEO है, IT हेड है, मैं नंबर मिल गया वहाँ पे, मैंने मतलब ऑलमोस्ट 1000 ये, क्योंकि मेरा जॉब मतलब जो मेरी इंटर्नशिप थी वो दिल्ली था, पंजाब, ये चंडीगढ़ वाला रीजन था, एंड देन हिमाचल एंड शिमला। तो बद्दी में वी हैव लॉट ऑफ कंपनीज, राइट? सो वहाँ पे मैं सो मेरे को उससे बहुत सारे लोग मिले। इवन देयर इज अ गाय, ये है ना, मैनफोर्स में एक बंदा है, ही इज लाइक IT हेड देयर अभी, आई थिंक ही इज वाइस प्रेसिडेंट और समथिंग। ही कॉल्ड मी, मतलब मैंने वो भी नहीं किया था कि मेरे को वो बंदा कॉल करेगा। आई रोट अ मैसेज ऑन लिंक्डइन टू हिम एंड ही कॉल्ड मी। आई वेंट टू मीट हिम इन आई थिंक 2018 में गया था मैं मिलने। सो आई मीन इट वाज नाइस एक्सपीरियंस, लाइक ये बात करना, लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है, एंड इवन फ्रॉम द पीपल दैट यू जस्ट एडमायर एंड जस्ट यू थिंक अबाउट कि कैसे करते होंगे, देन you when you talk to them you learn कि how they are doing their work, right? It's not only about selling, right? You are generating the lead, you are talking, like even if you are selling a product, like I did it only for 3 months, but what I learned from there is one thing: you need to be patient, right? There will be thousands of calls and there will be thousands of discussion, and it won't Wow. result in anything, right? But there will be 2 or 3 lead, or there will be 3 or 4 things that can help you, right? So one thing that you need to learn is patience, because 10 कॉल करोगे आप 20 लोगों से, कितने लोग तो आपको सीधे मुंह पे मना कर देंगे कि नहीं हम नहीं मिल रहे। सो वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जॉब्स में ना, यहाँ पे आपको पेशेंस बहुत बड़ा टर्म है, पेशेंस एंड पंक्चुअलिटी। ये किसी ने आपको बोला कि आपको 12 बजे आना है तो आना है। इवन अभी मैंने सर को बोला था 10:30 बजे, आई वॉज देयर ऑन 10:30 एग्जैक्टली। अब वो मैंने वहीं से सीखा, यू कांट मिस, राइट? कि 10:30 अगर किसी ने आपको बुलाया है तो यू हैव टू बी देयर। अगर किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आपको मिला है, मे बी पेशेंट है तो वो मिस कर सकता है, बट इफ यू आर ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यू कांट, क्योंकि वो 2 मिनट 3 मिनट का ही विंडो आपको मिलना है। सो यू कांट कि चलो ठीक है मेरे को 10:35 का बोला है, मैं 10:50 तक जाऊंगा। ही कैन बी लेट, ही कैन बी लाइक मे बी आपको कॉल किया उसने 10:35 का, ही इज कमिंग देयर बाय 12, राइट? But you can't. You have to be there on 10:35. So punctuality and patience, the best thing that you can learn from marketing jobs. Okay. It's a great life lesson. Sir, how did you get your first job at Novartis? So it was campus. I was campus hired. So like it was third or fourth company, I guess. So in Naipa, like when you go to the college, like in a 1 month or 2 months, you will get the internship. Then next month when we come back from an internship, there will be like placement and everything starting. So I guess in 2000
18 September or October. This was third or fourth company. So like in colleges there is a like even in NIPER there are a few companies that they will come and they have some criteria like you need to have 70% in this, 80% in this, 90% in this, then you will be able to. So I think the first company was GS. There is a pharma consulting company in Gurgaon, ZS Huh. Associates is there. So first they came, but they had this criteria that everywhere you need to have 70%. But I don't have in 12th. I do not have 70%. So I missed that. Then IQVIA came. So IQVIA put me on hold. So they had like plan of hiring 4 people only, but I was the fifth one, and they were impressed. But they told me that put me on hold. That in a 1 month or 10 days they will reply. But the next day notice came, and here I mean I was not prepared for that. Even in interview when I went on the interview, I was not aware about anything notice. So like few of my friends they were studying. So I just took their notes and just I mean this question takes interest. So like if you are going for an interview for a company, you need to know about that company at least their what they do, what they do not. Because like first time Hyderabad was not my preferable place. I had like misconception about yeah. So I was preferring to have a job in Gurgaon only. That is why I was more focused on IQ का. But then ये इसका आया मैंने बोला ठीक है ट्राई करते हैं बिकॉज देयर इज अ पॉलिसी इन नाइपर कि अगर आपने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो यू कांट सेट इन नेक्स्ट कंपनी तो आपको सोच समझ के ही करना है सो आई एक्सेप्टेड नहीं ठीक है सही है सो देन Life has its own plan. हाँ वो आप प्लान नहीं कर सकते yeah. So was working in analytics is your original plan? यस आफ्टर ये मार्केटिंग के जॉब के बाद मेरे को रियलाइज हो गया था बिकॉज आई एम नॉट दैट मच ट्रैवल फ्रेंडली कि हर रोज मैं 50 किलोमीटर और 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर जाऊँ सो आई मीन आई लाइक डूइंग जॉब कि मेरा अपना सिस्टम है मैं बैठा हूँ आई एम डूइंग दैट जॉब टू माई सेल्फ और ये नहीं कि मतलब हर रोज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एंड दैट इज द ओनली रीजन आई डिड नॉट चूज मार्केटिंग एंड all that otherwise like you have 2 or 3 options if you're doing MBA from NIPER you have 2 or 3 options that you can choose one is you go to the pharma marketing on sales or product management or and the second one is this pharma analytical job consulting job are there so that was I think best suited for me like even consulting we have multiple like domains multiple option but this is a larger domain yeah तो सर कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को उनकी मन की जॉब नहीं मिल पाती मतलब उन्हें जैसे चाहिए जैसे आपका प्रेफरेंस था गुड़गांव वगैरह जाना लेकिन जैसे नहीं मिल पाता है कभी उन्हें उनकी मन की जॉब तो उन बच्चों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे प्रॉब्लम वही है ना कि हमने मिसकॉन्सेप्ट अब मैं क्या बोल रहा कि मैंने मिसकॉन्सेप्शन बना लिया कि मेरे को हैदराबाद नहीं जाना है आई हैड लाइक मेरे को वो कहीं से थॉट थे कि अरे वो वहाँ पे बहुत गर्मी होगी ये होगा वो होगा बट इट्स नॉट लाइक दैट जब तक आप करोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा ठीक है और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि होता है ना कि हम मेरे मन का जॉब नहीं मिला मेरे को तो अगर आप 100 में से 99 लोगों का देखोगे तो उनको मन के काम नहीं मिल रहे हैं राइट बट वट यू नीड टू डू कि आपको उसमें अपना ढूंढना जरूरी है कि जो आप करने जा रहे हो उसमें आप कैसे आप कैसे अपना मन की चीज ढूंढोगे राइट इफ यू आर डूइंग जॉब इन अ कंपनी इट्स नॉट कि आपको क्योंकि आपको पता नहीं है आप एक बार जॉब करोगे एंड यू नीड टू लर्न कि राइट अगर मेरा काम है कि मैं डेटा से रिलेटेड काम कर रहा हूँ मैं ब्रांड बट मेरे को वहीं पे लिमिटेड नहीं होना है यू नीड टू कि मैं जो काम कर रहा हूँ आगे चल के कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ठीक है एंड इफ यू लर्न अबाउट एवरीथिंग यू आई एम श्योर यू विल फाइंड समथिंग that will like entice you that will give you some idea कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूँ it's purposeful right तो सर जैसे आप वर्क करते हो पावर बीआई और एसक्यूएल के साथ तो ऐसा कौन सा एक प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर है जो एक न्यू बिगिनर को सीखना चाहिए एक बिगिनिंग स्टूडेंट जो जैसे ये सीख लेना चाहिए सी एक्सेल पावर पॉइंट ये तो आना ही चाहिए ये मस्ट है लाइक इट्स ब्रेड एंड बटर अब नहीं है बट या स्टिल इट्स देयर बट अभी के लिए आई से कि पावर बीआई इज इजी they can start with Power BI SQL उसके बाद क्योंकि we are not like coming from computer science background right but right now the pharma jobs are like mix of both like the software that I have learned वो CS वाले बच्चे पढ़ते हैं Python हो गया ये हो गया वो हो गया now we are learning it because we need to learn अगर आपको इवॉल्व होना है तो we need to learn इवन कई जगह तो मैंने ये भी सजेस्ट किया है कि we can introduce those courses in pharma जो कॉलेजेस में हम ला सकते हैं इट्स नॉट दैट टफ राइट अगर शुरू से पहले से पढ़ाया जाए तो इट्स नॉट दैट टफ राइट तो वही है कि दे कैन स्टार्ट विद ये एक्सेल पीपीटी एंड एवरीथिंग दे मस्ट नो बट दे कैन स्टार्ट विद पावर बीआई इट्स इजी
इट्स कंपैरेटिवली इजी, इतना कोडिंग वगैरह नहीं है, ठीक है. एंड दे कैन गो फॉर एसक्यूएल. एसक्यूएल भी बहुत सही चीज़ है, बहुत ही, मतलब एसक्यूएल इज नॉट समथिंग लाइक इट्स अ प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट. एसक्यूएल इज समथिंग लाइक यू हैव अ डेटा हब, राइट. अब इंस्टाग्राम पे आप जाते हो, राइट, यू सर्च समथिंग, या गूगल पे आप सर्च करते हो. सो वो कैसे आता है, वो जो प्लेटफॉर्म, अब आपने सर्च किया, राइट, अब उनके पास बहुत सारा डेटा वेयर हाउस है, राइट. सो एसक्यूएल जो है वो दे विल लाइक इट विल हेल्प यू टू फेच दैट डेटा, जो आप पूछ रहे हो ना उसको वो उसमें कन्वर्ट करके वो डेटा को लेके आएगा. तो अब ये काम हम कंपनीज में भी करते हैं. वी हैव डेटा वेयर हाउस, वी हैव लॉट्स ऑफ डेटा, बट वो डेटा से बात कैसे करनी, सो दैट इज एसक्यूएल. उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. सो दैट वी नीड टू नो कि एटलीस्ट एसक्यूएल आ जाए, पावर भी आ जाए. तो ये एज ए स्टार्ट होना चाहिए, बिकॉज आई एम सीइंग लाइक in different regions of college, like if you see colleges from south, if you see Maharashtra college, Delhi side college, they know, like if you see their CV, they have already everything like Power BI, SQL, Python, or I mean they are like kind of CS plus pharma, right. So kind of work people are already doing, so we also need to do, and they can start with Power BI, SQL. तो आपने ये सारी चीजें कहाँ से सीखी थी? ऑफिस में ही, मतलब बिकॉज मेरे टाइम पे तो वी वर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है. हमारे लिए तो ये बात थी, इवन इन स्टार्टिंग ऑफ माय जॉब 1 or 2 years इट वाज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, राइट. बट नाउ व्हेन दिस एआई एंड एवरीथिंग स्टार्टेड टू कम, देन वी नीडेड टू नो, राइट. सो देन आई मीन ऑन द जॉब ट्रेनिंग आई गॉट. Sir, can you explain business intelligence in simple way with giving an example related to pharma Yes, world? yes. So if I tell you that you are intelligent, okay, so suppose I am giving you example, right. So how would you qualify someone that he is intelligent or he is not intelligent? स्टैंडर्ड साइट होते हैं उसके लिए, जैसे बट what I think ना, कि सपोज आपके 10 क्लासमेट हैं, राइट. अब बोल रहे हैं कि ये ना एक्स बंदा इंटेलिजेंट है, तो वो कैसे इंटेलिजेंट है, तो उसका इंटेलिजेंस कैसे पता चलेगा. मैं कुछ पूछूंगा वो आंसर करेगा, वो आंसर कर कैसे रहा है, बिकॉज ही हैज लाइक जो डेटा है वो आपके पास भी है, जो डेटा है वो उसके पास भी है, उसके पास वही बुक है. बट वो बुक्स में जो नॉलेज है उसको इनसाइट्स में कैसे बताना है, कि उसको मीनिंगफुल कैसे बताना है. कि मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई ये मेडिसिन है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, तो वो तो आपके भी बुक में है ना, बट यू आर नॉट एबल टू आंसर, बट ही इज एबल टू आंसर, कि उसने जो पढ़ा उसको वो कैसे ट्रांसलेट कर रहा है. तो इंटेलिजेंस इज समथिंग लाइक वी हैव द डेटा, ठीक है, बट उससे मीनिंगफुल इनसाइट्स कैसे निकालने, ठीक है, कि जो हमारे मतलब सपोज कि अभी जैसे एक प्रोजेक्ट पे हमने काम किया था, दैट वाज रिसोर्स टू इट, कि हम कितना रिसोर्स लगा रहे हैं और उससे हमें कितना. तो सिंपल रिसोर्स इज लाइक हमारे मार्केटिंग में एक्सपेंसेस होते हैं, राइट. एवरी कंपनी इज डूइंग मार्केटिंग एंड देयर आर चैनल्स, डिफरेंट चैनल्स, लाइक एक मार्केट रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के पास जा रहा है तो उसका अलग एक्सपेंडिचर होगा. ये सेमिनार्स हो रहे हैं, सपोज लाइक ये एड्स, अब जैसे इंडिया में तो एड्स अलाउड नहीं है फार्मा के, बट बाहर में यूरोपियन कंट्रीज में इट्स अलाउड, राइट. सो उसके अलग अलग खर्चे होते हैं. सो हाउ दैट जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका हमारे सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे न्यू पेशेंट जो जनरेट हो रहे हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो वो उसको स्टडी करके हम जब डेटा को स्टडी करते हैं, जो इंटेलिजेंस है, डेटा इज देयर, ठीक है, यू नीड टू स्टडी दैट डेटा एंड यू नीड टू फाइंड समथिंग इंसाइटफुल, इम्पैक्टफुल, कि जिसपे आगे चल के जो हमारी लीडरशिप है, जो मैनेजमेंट है, उस पर काम कर सके, राइट. तो दैट इज बिजनेस इंटेलिजेंस. So, sir, what was your role or what was your challenges every day as a senior analyst at Novartis? See, though I mean everyday challenges are like so mostly it's not like one product is there or one stakeholder. There are multiple stakeholders. Okay, so you need to. I mean, right now I am working with 3 or 4 companies. We are working on a platform where 3 or 4 companies are working. There are tens of stakeholders. So managing those stakeholders, managing like different kind of people is literally difficult task. I mean, if you'll work on the people from different region, you will come to know that they have different kind of psyche. You cannot expect same thing from a French people and same thing from Spanish people. They have different kind of work ethics, different kind of. I mean, whenever you will work with a person from US, you will come to know they have different kind of work ethic. They know work. But if you work with the French people, you will know that work is not everything for them, right? So they have different kind of psyche and managing everything. Like what we expect that if I am asking you a question, you need to answer it immediately. But it's not with the European people. They will give the answer in their own time, right?
So that is the kind of things that we are managing, because we are being asked question that we need to answer immediately, and the people that we are looking for, they are not giving the answer. So like managing the people and different kinds of the stakeholders, it's really tough. Yeah. So how do you choose which tool to use for which work? Yes, that's the difficult question. अब उसमें देखिए, अब मैं क्या बोलूँ, like it's not like one tool. We have different kinds of tools. Like एक एक ना, अब आप, मैं क्या बोलूँ, या जो फ़ोन है, ठीक है, सपोज आप इंस्टा चला रहे हो, आप व्हाट्सएप चला रहे हो, सो द फ्रंट एंड आप देख रहे हो ना, सो इट्स नॉट एवरीथिंग, राइट. अब मैं ये बोल रहा हूँ कि पावर बीआई यूज करता हूँ, एसक्यूएल यूज करता हूँ, इट्स नॉट कि मैं केवल एसक्यूएल यूज करता हूँ, केवल पावर बीआई यूज करता हूँ. देयर आर टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, उनका अलग अलग काम है, ठीक है. डेटा गैदरिंग के लिए इट्स डिफरेंट. ईटीएल होता है हमारे में, ईटीएल टूल बोलते हैं. ईटीएल टूल इज लाइक एक्सट्रैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मेटिंग एंड देन उसको लोड करना है, तो उसको उसके लिए अलग टूल है. तो हर का अपना अपना काम है. एसक्यूएल कहीं पे काम कर रहा है, पावर बीआई इज वर्किंग ऑन डिफरेंट लेवल. उसके बाद आगे के लिए अब डैशबोर्ड बनाना है, मतलब फ्रंट एंड जो बनाना होता है, जो चार्ट्स और ये सब देखते हो, तो उसके लिए मे भी कुछ और भी हो सकता है. तो वो डिपेंड करता है कि डेटा कितना है, कितना आपको ऑटोमेशन चाहिए, हाउ मच योर बजट इज अलाउइंग, राइट. बजट भी एक बड़ा कांस्टेंट है. सो देयर आर टेंस ऑफ थिंग जो डिसाइड करती हैं, एंड देयर आर टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक इन्वॉल्व. Do you still use Excel? या आई मीन एक्सेल तो एटलीस्ट 20% 25% तो अभी भी यूज हो रहा है. इट आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एक्सेल एकदम से बाहर हो जाए. बट या मोस्टली जो पहले होता था कि हमारे पूरे के पूरे रिपोर्ट्स बने होते थे एक्सेल पे, कि हमने वीवीए लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा. बट इट्स नॉट, आई मीन अब कोई भी फाइनल रिपोर्ट वी आर नॉट गिविंग ऑन एक्सेल. इट्स आइदर ऑन पावर बीआई, क्लिकसेंस, टैबलू, देयर आर एंगुलर, टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर, सो देयर वी आर वर्किंग. बट हाँ, बैक एंड का अभी भी बहुत सारा काम वी आर डूइंग इट ऑन एक्सेल. तो जैसे आजकल सर्टिफिकेशन कोर्स बहुत चलते हैं, जैसे मेडिकल कोडिंग पे सर्टिफिकेट, फार्माकोविजिलेंस पे सर्टिफिकेशन कोर्स, तो ऐसा आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट शुड इन्वेस्ट व्हाइल स्टडिंग? Yes, I think because like see, it's not about certifications. It's about knowledge, right? If they are just getting the certification, अगर पैसे देके मेरे को केवल सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो it doesn't make any sense. But if I am studying, मेरा प्रोसेस है, मैं, क्योंकि इवन हम भी करते हैं, we have like LinkedIn Premium, we have Coursera, we have edX, so we are studying from there, right? So but वो होना चाहिए कि it's not कि पर्पस होना चाहिए कि केवल वी हैव टू गेट द सर्टिफिकेशन, राइट. वी हैव टू लर्न थिंग्स, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप कल को जाओगे इंटरव्यू देने, तो दे विल आस्क द रियल क्वेश्चन, रियल सिनेरियो. वो ये नहीं होगा कि आपके सर्टिफिकेशन देखेंगे एंड दे विल गिव यू द जॉब, राइट. इफ यू से कि सीवी में आपका लिखा हुआ है कि यू नो पावर बीआई, दे विल आस्क क्वेश्चन अबाउट पावर बीआई, राइट. सो सर्टिफिकेशन इज गुड, और ऑब्वियसली अगर सर्टिफिकेशन हो रहा है तो दे आर स्टडीइंग इट, राइट. सो इट्स गुड. व्हेन यू वर डूइंग फार्मेसी, आपने ऐसे कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किए हुए थे? दैट टाइम ऑनलाइन कोर्सेज इतने अवेलेबल थे नहीं, मतलब एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ फार्मेसी, राइट. बट जब मैंने एमबीए किया तो वी हैड लाइक आई हैड फ्यू, मैंने प्राइसिंग पे कुछ कोर्स किए थे, मैंने मार्केटिंग के कुछ कोर्स किए थे. इवन आई एम नॉट श्योर लाइक आप लोगों को पता है कि नहीं, ये एडेक्स और कोर्सेरा पे वी हैव लाइक यू डू नॉट नीड टू पे फॉर एवरीथिंग. लाइक देयर आर फाइनेंशियल एड्स, उसमें आपको बताना पड़ता है कि आई एम अ स्टूडेंट, आई कांट अफोर्ड दिस कोर्स, राइट. सो यू कैन राइट अ ईमेल टू देम एंड दे विल गिव यू द कोर्स इन फ्री. आई हैव डन लाइक टेंस ऑफ कोर्स. जब मैं एमबीए में था तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कोर्स किए थे कि जिसका फाइनेंशियल एड है, आपको ₹1 पे करने की जरूरत नहीं. चूज द ऑप्शन, राइट वैलिड रीजन व्हाई यू वांट टू डू दिस कोर्स एंड यू डू नॉट हैव मनी, यू कांट अफोर्ड, they will give you the course in free. Okay, thank you, sir. Sir, as you are working on IM Best International project, what was your role and what you used to do in that project? Yes, so like so there is like not single me is working on that, but there are team like hundreds of people are working, because what we are doing trying to do there is like this is like IM Best International, so we have 11 countries in international, and then we have priority brands like Novartis has like their own brands. So we are trying to create a dashboard like this will be like single point solution. If you want to know about any brand for whatever country, you can just go to that dashboard, you can ask your question, you'll get the answer. So here we are working like with multiple countries, multiple teams and multiple companies, so it's not only Novartis project.
we are working with Accenture, we are working with IQVIA. So my work is like, so I am aware about Novartis data, right? But IQVIA is not aware, Accenture is not aware. So we are working on that. Like there is a market definition called like, right? So suppose I'll tell you that this is cup, right? And I am maker of this cup. Now I give you a work that find me competitors, right? Like who will be competing with me. So what will you do? You'll find other same kind of To ये cup maker, right? So same thing we have, right? In like cosmetics is there. So there are market definition for cosmetics. What is market definition is like finding it's their own competitors. Like cosmetics is there for psoriasis, psoriatic arthritis, and then ankylosing spondylitis. So what are the other medication that is being used for the same kind of medication? So we are creating those market definition. Then we have KPI. The KPI are called key performance indicator. Like how will you tell? Like if someone asks you that cosmetics is doing good, so how will you tell that? It's not only the word, right? So there are sales, there is total patient, there is new patient, there is share of voice, there is share of, there are KPI, there are hundreds of KPIs that are there. So we are the one defining those KPIs, we are the one defining those market definition. So we are supporting on those roles. There are people who are working on the front end dashboard, the charts and the everything colorful that you see. There are people who are gathering those data. So there are hundreds of people working on those projects. So it's not single, like in companies the project is not a single man or single or two people project, right? There are hundred or thousand of people working on the same kind of project, right? thank you, Yes. sir. You have worked with different countries. Yes. What's tricky about them? Like, what's fun and what's tricky about them? Yes, I mean the like the work ethic. I mean not the work ethics, the kind of psyche that every country people have. It's different. Like if you work with US people, they have different kind of like work related psyche. If you work with European people, they have different kinds of, and the main problem that you will face if you go to the company, I mean an international company, the MNC, that the main problem that you will face when you're working with multiple countries, that the accent. When you talk to them, the accent that you'll find very difficult to understand in starting, right? Because like we are aware about US accent, mainly UK accent, not European, right? So a people from Hungary, if he will talk to you, you might not understand him like in initial state. But if you right now, if you tell me that this person is talking in English, can you tell me the accent? I will tell you it's Italian, Spanish, French, or even Asian people, the Japanese, Chinese. It's very difficult to work with them because they, I mean, in India, like most of the people know English, right? But in China, Japan, no. Like, even the leadership doesn't know like that much of English. Like they have their own language, and they are really proud of that. So mostly they are talking in their language only. They are very like little like, if they talk to us, they use those like as a language, but English, but it's not that fluent, right? So you need to listen those words very carefully, maybe record the session, then try to. So it's really difficult if you're working with multiple countries. Their work culture, their like language barrier is there. So yeah, but it's fun also, right? Yeah. So people think analytics is all about data and charts, graphs and charts. What do you think? Like, कई बार हमें स्मार्ट थिंकिंग हमारे लिए काम करती है उधर. It's not only about charts and graphs. No, that's so see, charts and graphs are the, I mean it's the final one, right? There is a lot of processing going on, right? If suppose अगर आप देख रहे हो, if there is a line chart, there bar chart है, pie chart है. So even वो pie chart ही क्यों है, उसके पीछे there is a lot of reason कि why we are showing pie chart, why we are showing trend line, why we are showing bar chart उसके लिए. तो उसका भी एक reason है, and even it's not business analytics is only about the charts, and it's part of the job, right? But then we have insights, right? We are trying to generate insights from, like suppose we have chart, right? What's that chart telling to us, right? We need to know. Like charts talk, but how will they talk, right? So that you need to know, okay, that if you are seeing a graph, right? So what it's telling to us, and how that chart, that insights from the chart can be like can be useful as an impactful thing, right? Can be used as an impactful thing. So that's the part of business analytics job, right? Not only the charts and graphs. Graphs. Yeah.
Sir, after a long day, how do you relax yourself? Any hobbies or a stress buster? Yeah, I watch movies, series. Like I'm a big fan of sitcoms. Yeah, so I watch mostly series, Netflix, Prime, Hotstar, anything. I'm not that kind of person like who will go outside and like I play cricket on weekends mostly, but on the weekdays I watch like Netflix, Hotstar, Prime. It's best for me. सर ऐसी कोई बुक पॉडकास्ट या वेबसाइट जो आप सजेस्ट करना चाहोगे एक स्टूडेंट को जो उसे स्किल्स से और माइंडसेट से ग्रो करे? I think there are so many online platforms. Like I told you, Coursera is there, edX is there. There are plenty of courses, not only about AI or Excel and all the tools, and even pharma related. They have thousands of courses, right? So, or usme we have option, right? If you can't pay, you can tell them like you give them a valid reason, and they will give you the course in free. Or even, I mean, if it's charging 500, 600 rupees, and if you're learning, like if you're paying 4 lakhs and 5 lakhs for whole study, why can't you pay more 5,000, 10,000, right? So there are so many online platforms, online coachings are there. You can learn from there, but yeah, and the main goal should be learning, not only to Getting get the certificates. certification. Yes. सर ऐसी कौन सी हॉबीज हैं या फिर ऐसी कौन सी स्किल्स है जो एक स्टूडेंट को बिल्ड कर लेनी चाहिए अगर उसे आपकी तरह करियर? I mean, the main point that because as I already told you, it's not about we are working for only our own people, right? That so you need to have good communication skill. I mean, you need to have a good communication skill in English, personality, okay, and then the required tools which are there in the market. If you want to if you want to go in QA and QC, learn about QA and QC, not just to if you applied for the job you get the job, now you are doing it learning for QA and QC. Just try to be prepared, find yourself. Like if you want to go to marketing, study about marketing, right? What are the skills that you need to have for marketing, right? If you want to go to consulting field, learn about consulting, what's in there, what are the tools and techniques that I need to learn, right? So just, I mean, clear your mind. I mean, I had my internship in marketing, but I was preferring to go to pharma consulting field, and I was preparing myself according to that only. Like I was learning tools and techniques for that job only, right? So you need to be clear in your mind, right? If you want to go to marketing, and then there are plenty of options. You can't say that no, I do not have option. I can only work in that field, right? So there is plenty of option. You can choose your field, learn according to that, and it's already there. I mean, like we have all the information on our fingertips, right? हाँ. Yeah, so it's easy. सर एज एआई आ गया है और अब सबको ये लगता है कि अब तो हमारी जॉब गई, अब तो जॉब्स जा रही हैं, अब इतनी नहीं मिलेंगी जॉब्स या फिर वर्कर्स को निकाला जाता है, तो आप क्या सोचते हो? मतलब स्टूडेंट को ऐसे कैसे प्रिपेयर होना चाहिए कि एआई उसका वर्क ना? सी जब ये ना मतलब अब मैं तो उस टाइम नहीं था, बट इफ यू टॉक टू योर पेरेंट्स और इवन मतलब जो मतलब दादा वादा लोग के जमाने के हैं, सो इन 70s 80s में ना व्हेन कंप्यूटर केम ना, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हो रहा था कि लाइक कंप्यूटर विल टेक आवर जॉब्स ड्यूरेबली. एआई हमारी जॉब खाने के लिए नहीं है. इट्स नॉट देयर टू टेक आवर जॉब्स, राइट? इट्स देयर टू असिस्ट अस, ठीक है? बट हमें असिस्टेंस भी लेना ना है. हम जस्ट लाइक सी चैट जीपीटी से you can't get your answer, right? But there is a technique. Like अगर आप नॉर्मल लाइक डे टू डे के क्वेश्चन है, इट कैन गिव इजिली गिव यू आंसर, राइट? बट जब जॉब आप करोगे ना, तो उसके लिए प्रॉम्प्ट होता है. यू नीड टू राइट दैट प्रॉम्प्ट टू गेट द एग्जैक्ट आंसर, राइट? व्हाट यू आर ट्राइंग टू से टू इट, यू नीड टू राइट दैट, राइट? और उसके लिए प्रॉम्प्ट होता है. तो यू नीड टू लर्न दोज एआई स्किल्स, राइट? इट्स नॉट गोइंग टू टेक योर जॉब, बट हाँ ये ले लेगा अगर आपको नहीं सीखोगे तो. सो यू नीड टू लर्न दोज थिंग्स. अगर कंप्यूटर जॉब ले लेगा, किसकी जॉब ले लेगा? जो कंप्यूटर नहीं सीखेगा. सीखो, जॉब नहीं लेगा वो. इवन दैट विल क्रिएट मोर जॉब. कंप्यूटर जब से आया वी वर नॉट अवेयर कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी. अब कोविड आया, राइट? हमें क्या लगा कि कोविड के कारण इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी. इवन सी कोविड के बाद हम इतनी सारी ऑनलाइन चीजें जो अवेलेबल हुई, ऑनलाइन कोचिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, ये क्यों हुई? क्योंकि कोविड आ गया. ठीक, ये जो इंटरनेट है उसमें वी वेंट 10 years ahead just because of COVID, right? So it's not there to get your job, but हाँ अगर आपको लगता है कि आप नहीं इसको सीखोगे, इसको बाइकआउट करोगे, so definitely it will take your job. So you need to learn it, you need to like learn how to use it,
Yes. Then I think you are safe. This is going to help our students really Yes. well. Thank you, sir, for coming. This is a token of appreciation for you. All the student listening, whether you are still figuring out your calling or debugging your SQL query. And that brings us to the end of another episode of Beyond the Prescription, where we have officially learned that data isn't just about rows and columns, but a language spoken fluently by an analyst like Sir. From topping national exams to topping dashboards at Novartis, Shar has shown us how that curiosity, consistency, and a little bit of Excel wizardry can go a long way if combined with the right mindset. Thank you, sir, for decoding the pharma analyst career for us with such clarity and humility. We wish you continued success. Until next time, keep learning, keep questioning, and always look beyond the prescription. This is Riya Ragwanshi signing off. Take care, bye bye, and don't forget to like, share, and subscribe to our show.